Hello my friends, welcome to the Manu Education. So today in this particular video we'll talk about Maharashtra B.Ed CET and ELCT 2022. Guys, my name is Surya sir. You can ask me your overall doubts in the comment section. Guys, please watch this particular video till the end because it is with respect to the form filling process. We'll talk about the step by step complete form filling process क्योंकि बहुत से मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स से in their application form and thereafter cap round के समय उन्हें काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है. So we'll see the important parameters such as the name जहां आप काफ़ी मिस्टेक करते हैं and most of the girl students preferred the B.Ed CET and ELCT entrance exam because they want to pursue the Bachelor of Education. With respect to the category and during their name after marriage वापस दिक्कत आ जाती है. अब उनको एफिडेविट बनाना है या नहीं बनाना है. Okay, we'll talk in detail about same. Category, which particular category you have to choose, either you have respect to documents with you or not. Marks, either this is in CGPA format or in the percentage, आपको क्या इंटर करना है. Now after graduation आप अप्लाई कर रहे हो या फिर आफ्टर मास्टर, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट आर आस्किंग मी सर मास्टर्स के बाद क्या B.Ed 1 ईयर का हो गया है प्रोग्राम. Not at all guys, अभी तक तो नहीं, because according to new education policy the NEP 2020 implement हुई नहीं है. अगर वो implement हो जाती है तो मास्टर के बाद B.Ed का प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर का ही होने वाला है, लेकिन अभी तक ये implement नहीं हुए. सो B.Ed CET ELCT जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और B.Ed परस्यू करना चाहते हो, then this is 2 years program. Okay guys, so let's talk in detail about all the parameters and the documents. Most important कौन कौन से documents आपको लगने वाले हैं and what exactly the format you need. PDF format में चाहिए, आपके फोटो और सिग्नेचर कौन से डायमेंशन से चाहिए, we'll talk in detail. Okay, so stay tuned with me. Before moving further, we have launched Manu B.Ed Entrance और न्यू YouTube चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है. गाइस काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ B.Ed रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है. B.Ed के बेस्ट कॉलेजेस, पॉडकास्ट, प्लेसमेंट्स एंड स्ट्रैटेजी टू क्रैक द B.Ed CET and ELCT. So batches we already launched. We also launched the crash course program for 2022. You can register by calling on this particular number or you can fill a Google form which is provided in the description. Fill that form and you will get a free counseling session from our experts. So guys, you will get all these features: live class, book study material, shortcut tricks, doubt class, recorded videos, topic test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus questions and the mentorship. Complete motivation मिलने वाला है, guidance मिलने वाला है about the cap round program. So guys, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Just call on this particular number and book your seat right now. So let's visit the official website और देखेंगे step by step form filling process कैसे होता है. So right now we are on the official website of the CET cell और B.Ed को लेकर न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब ओपन हो चुका है. ऑलरेडी रजिस्टर्ड. अब ऑलरेडी रजिस्टर्ड मतलब यहाँ तो अभी तक किसी ने नहीं किया है. ओके, बट आप कंप्लीट शेड्यूल देख सकते हो. डाउनलोड्स ऑप्शन को क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू कर सकते हो. गाइज, फॉर्म फिलिंग के पहले जैसे कि मैंने भी अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को कंप्लीट गो थ्रू किया है एंड देन आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो क्योंकि यहीं से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली है. सो B.Ed इट इज़ 2 year रेगुलर प्रोग्राम. ओके, B.Ed स्पेशल एजुकेशन फुल टाइम कोर्स. आप सारी इन्फो यहाँ देख सकते हो, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेड्यूल कब है, एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, पेमेंट, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, हॉल टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट, अगर लेट रिपोर्ट करते हो तो क्या फाइन बैठने वाला है या फिर आप एग्ज़ाम दोगे या नहीं दे पाओगे, टेस्ट सेंटर कौन कौन से है, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम क्या है. सो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है. गाइस काइंडली गो थ्रू दिस एंड दे आफ्टर स्टार्ट योर एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यस गाइस, 50 and 55% फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट. अब 50% कौन से प्रोग्राम से बिलोंग करते हो तो 45 किन के लिए है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है पहले भी. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो टू. एंड नाउ ELCT इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट. अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हो देन आपको जो ELCT का ऑप्शन है वो चूज़ करना है अभी. अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आप ELCT का ऑप्शन चूज़ नहीं करते हो दैट मीन्स आप सिर्फ रेगुलर कोर्स के लिए जा रहे हो B.Ed CET के लिए, जिससे आपको इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस नहीं मिलने वाली है. सो टू गेट एडमिशन इन टू द इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस यू हैव टू अपीयर फॉर द ELCT आफ्टर B.Ed CET. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. क्लिक ओवर होम, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. इसके पहले डेट देख लेते हैं. 24 मार्च आज से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एंड इट विल लास्ट अप टू 12 अप्रैल. सो गाइज, आपको क्या करना है, विंडो काफ़ी कम दिनों की है लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, 5 to 6 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप कर देना है. ना तो लास्ट डे के भरोसे बैठना है और ना ही आज फिल करना है. आज आपको सिर्फ वीडियो देखनी है,
एक नहीं 2 बार वीडियो देख लो, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर गो थ्रू कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लो एंड दे आफ्टर स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ओके, हॉल टिकट मिलने वाला है आपको 10th मई और आपकी एग्जाम मल्टीपल स्लॉट्स में होने वाली है 2 जून टू 4 जून। अब इसके बारे में कुछ डेट्स वापस चेंज हो सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स क्लिक ओवर न्यू रजिस्ट्रेशन, go through all these instructions, click over here and I accept and proceed. Now enter your name. So name should be as per the SSC or HSC equivalent marks memo certificate या फिर marksheet. ओके, सो आपको क्या करना है, OMS कैंडिडेट किनके सिर्फ नाम है, सरनेम नहीं है। कोई कहता है कि मेरा सिर्फ नाम है, लाइक फॉर एग्जांपल शिवम, तो मार्कशीट पे सिर्फ शिवम लिखा है। गाइस, आप जो नाम फिल करने वाले हो वो आपकी मार्कशीट से मैच होना चाहिए। अब जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम का एक फॉर्मेट है, पहले सरनेम होता है मार्कशीट पर, दे आफ्टर कैंडिडेट्स नेम एंड दे आफ्टर फादर नेम। OMS कैंडिडेट उनकी मार्कशीट में ऐसा है कि पहले उनका नाम, देन फादर का नाम एंड देन सरनेम। सो आपको क्या करना है, पहले या सरनेम लिख लो अगर आप OMS हो या फिर महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, यहाँ आप सरनेम लिख लो, यहाँ आपका नाम मिडिल में एंड देन फादर नेम। ओके, so here I'm writing my name, father's name, thereafter mother's name, gender, confirm your gender, date of birth, religion, region to which you belong, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, गांव से या शहर से, आपको सेलेक्ट करना है, मातृभाषा, ओके, एंड thereafter नेशनलिटी इंडियन तो है ही है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लो। गाइज, काफ़ी आराम से प्रोसेस कर सकते हो, इसमें कोई घाई गड़बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में फिर एग्ज़ाम अगर देने को नहीं मिले और आप फीस भी पे कर दो, दैन क्या फ़ायदा गाइज, राइट। सो काफ़ी आराम से फॉर्म फिलअप करना है। ओके, कंप्लीट चेक कर लो कैसे मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ। ओके, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड एंड टेलीफोन नंबर। अब टेलीफोन नंबर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ जो मोबाइल नंबर एंटर करने वाले हो और ईमेल आईडी, इट शुड बी एक्टिव थ्रू आउट दिस प्रोसेस। जब तक कैप राउंड आपका फिनिश ना हो जाए तब तक के लिए ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पे OTP, इसी पे मैसेज और सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। इज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट एड्रेस? यस, सेलेक्ट कर लो। नाउ यू हैव टू क्रिएट योर पासवर्ड। गाइज, ऑल द मैरिड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी मैरिड गर्ल्स हैं उनके नाम अगर चेंज हो चुके हैं और मार्कशीट में नाम अलग है तो आपको क्या करना है, एज पर मार्कशीट यहाँ नाम लिखना है। आफ्टर मैरिज जो भी नेम है वो आप कैप राउंड के समय फिल कर सकते हो, और उसके लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बना लेना है कि ड्यू टू मैरिज मेरा नाम ये था XYZ, अब ये नाम हो गया है XYB। ओके, जो भी नाम चेंज हुआ है, ABC से XYZ हुआ है तो आप बस आपको नाम चेंज करना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एफिडेविट बना लेना है। अब आपको सिर्फ एज पर मार्कशीट एंटर करना है। नाउ पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू, 1 स्पेशल कैरेक्टर। ओके, सो पासवर्ड काफ़ी सिंपल बना सकते हो, लिख के ले लो, भूलना नहीं है। ऑल दो भूल गए तो बाद में पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि ये पासवर्ड भूलना नहीं है। कन्फर्म योर पासवर्ड एंड एंटर द कैप्चा, सेव एंड प्रोसीड। सो वन टाइम पासवर्ड हैज़ बिन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब अपना मोबाइल नंबर चेक कर लो, वहाँ आपको OTP मिला होगा, वो OTP एंटर कर दो एंड वेरीफाई OTP। जैसे ही OTP सेंड करोगे, ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसका मैसेज भी आपको आ चुका होगा। राइट डाउन कर लो आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, राइट। सो सारी इंस्ट्रक्शन गो थ्रू कर लो, कौन कौन से रेड मार्क है आपको सब फिल करने हैं। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड नाउ यहाँ से हम स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, द ऑल 9 स्टेप्स। ओके, सो एंटर योर एप्लीकेशन नंबर हियर and password, sign in. So it says welcome to online registration for Maharashtra B.Ed CET, candidate applicant, IP एड्रेस, नाम क्या है, सब कुछ मिल गया है यहाँ। योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट। अब आपको ये सारे 9 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एट द एंड, जब रजिस्ट्रेशन फीस आप पे कर दोगे देन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक प्रिंट कॉपी ले लेनी है। ओके, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आप इसे सेव भी कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा इन द PDF फॉर्मेट, और यही आपको कैप राउंड के समय काम आने वाला है। सो गाइज, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना ना भूले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। सो कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स। अब कैंडिडेचर टाइप में बहुत सी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स के दौरान, राइट। अब महाराष्ट्र टाइप A क्या है, B, C, D, E, OMS एंड जम्मू कश्मीर। अब OMS अगर आप सेलेक्ट करते हो दैट मीन्स आपका जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपने अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से किया है, राइट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है महाराष्ट्र स्टेट से, ओके, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया महाराष्ट्र स्टेट से, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पेरेंट्स के पास है। अगर पेरेंट्स के पास है
तो आप महाराष्ट्र टाइप बी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ है और आपके पास खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है बॉर्न इन महाराष्ट्र का, तो आप टाइप ए सेलेक्ट कर सकते हो। बी जैसे कि मैंने बता दिया, इफ़ योर मदर और फादर हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, टाइप सी दैट मीन्स कंडीशन सेम है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। सेकेंड वन, द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हु इज posted and reported to DT in Maharashtra state before the last date for submitting the application form for CAP. That means जब कैप राउंड स्टार्ट होने वाला है उसकी जो लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटिंग की, उसके पहले अगर पोस्टिंग हुई है आपके पेरेंट्स की, देन आप टाइप सी सेलेक्ट कर सकते हो। टाइप डी दैट मीन्स द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, तो आप टाइप डी सेलेक्ट कर सकते हो। टाइप ई, इसका मतलब है कि आपका जो बॉर्न हुआ है वो महाराष्ट्र और डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया से हुआ है, ठीक है। सो आपके पास अगर वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है देन टाइप ई सेलेक्ट कर लो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे पास बॉर्न इन महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है, बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र और कर्नाटक डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया से, और बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ हुआ है मेरा महाराष्ट्र से, तो टाइप ए सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकता? गाइज, अगर टाइप ए सेलेक्ट करते हो और टाइप ई सेलेक्ट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो आपका पता चल जाएगा। जैसे आपका बॉर्न प्लेस महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर एरिया है तो टाइप ई सेलेक्ट कर दो, टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम है आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से। अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो, ओके, और आप ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हो तो ओबीसी के रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर एससी के हो और रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन आपको जो सीट मिलने वाली है एज पर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट आप ट्रीट होने वाले हो, राइट। सो वहाँ प्रॉब्लम आती है, यहाँ नहीं। तो टाइप ई सेलेक्ट कर सकते हो। ओएमएस एंड जम्मू कश्मीर, सो उनकी ये कंडीशंस है, बस आपको सेलेक्ट करना है आपका कैंडिडेचर है। आई एम सेलेक्टिंग टाइप ए क्योंकि मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, अगर मैं ओपन कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ दैट मीन्स ओपन कर ली तो अब मुझे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो मुझे पूछ सकते हैं डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस के लिए मुझे जाना है या नहीं, यस और नो। अगर मैं यस सेलेक्ट करता हूँ दैट मीन्स मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या नहीं। सेलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब मेरे पास है देन आई विल सेलेक्ट अवेलेबल। अगर मेरे पास नहीं है नॉट अप्लाइड, और मेरे पास अभी तो नहीं लेकिन मैंने अप्लाई किया है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, देन एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट और इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से मैंने इशू किया है वो मुझे सेलेक्ट करना है। सेम अगर मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ SC ST OBC, देन मुझे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे। द कास्ट विच यू बिलोंग मुझे सेलेक्ट करनी है, देन पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल, देन यस सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। अगर नहीं है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, देन उसका रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट। सो गाइज ऑल द कैटेगरी कैंडिडेट्स, मैं उनको अभी कह दूं अगर आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी फॉर्म फिलिंग मत कीजिए। पहले इन सारी चीज़ों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर EWS, इनके लिए अप्लाई कर दो। तो आपके पास एप्लीकेशन की रिसिप्ट नंबर होने वाली है, एप्लीकेशन की डेट होने वाली है, इशूइंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट होने वाली है। सो क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो, राइट। सो आई एम सेलेक्टिंग open category candidate, caste, do you want to apply for EWS certificate, no, okay, disability, no, minority details, अगर minority select करते हो तो आपकी respective linguistic minority और religious minority आपको select करनी है, okay, so हम selecting no, and minority candidates हो तो respective अगर documents आपके पास है then आपकी कोशिश होगी कि minority institute को target करें, क्योंकि minority institute में ऑलमोस्ट 51% से 100% तक सारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ओके। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, अब आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, सपोज बीकॉम किया है आपने और बीकॉम में आपके परसेंट है 48 एंड रिक्वायरमेंट है 50% की, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हो। सो आपकी एलिजिबिलिटी होगी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आपको डिटेल्स एंटर करने हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के भी करने पड़ेंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सो वो सारे स्टूडेंट्स जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम सेलेक्टिंग ग्रेजुएशन ओवर हियर, सेव एंड प्रोसीड। SSC ऐड क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट बोर्ड, सेलेक्ट स्टेट, बोर्ड नेम, मार्क्स ऑब्टेन, आउट ऑफ मार्क्स, seat number, class, passing month and year,
सेव। नाउ HSC डिटेल्स, ऐड क्वालिफिकेशन, अगेन आपको सेम फॉलो करनी है सारी चीज़ें। स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल जो भी है आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सीट नंबर एंटर कर दो, मार्क्स ऑब्टेन, आउट ऑफ मार्क्स, आफ्टर क्लास, पासिंग मंथ एंड ईयर एंड सेव। नाउ ग्रेजुएशन डिटेल्स, ऐड क्वालिफिकेशन। अब ग्रेजुएशन आपने कौन सा किया है, आपने 3 इयर्स का किया है या 4 इयर्स का किया है, जो भी ग्रेजुएशन किया है गाइस, मार्क्स जो है आपको एग्रीगेट मार्क्स एंटर करने हैं। ओके, आपको सिर्फ फाइनल सेम के नहीं, अगर 3 इयर्स की डिग्री है, 6 सेमेस्टर पैटर्न है या फिर ईयरली पैटर्न है, सो जो भी है 6 सेमेस्टर में कितने मार्क्स मिले टोटल कर लो, आउट ऑफ मार्क्स कितने होते हैं वो टोटल कर लो, परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ओके, CGPA में मार्क्स है तो ट्राई करो कि उसको कन्वर्ट करने का परसेंटेज में, और नहीं हो पा रहा है गाइज, देन वॉच माय प्रीवियस वीडियो अबाउट द कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ओके, नाउ लाइक हियर आई एम सेलेक्टिंग बी फार्म जो 4 इयर्स की डिग्री है, तो अब मुझे क्या करना होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम, अपीयर्ड और पास। अगर अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो मार्क्स फिल करने की जरूरत नहीं है, पास कर चुके हो देन पास लिख लो, क्लास, पासिंग मंथ, सेलेक्ट ईयर, मार्क्स ऑब्टेन। अब मार्क्स ऑब्टेन में क्या करोगे, टोटल मार्क्स, टोटल आउट ऑफ, नाउ मार्क्स ऑब्टेन एंड आउट ऑफ मार्क्स, तो क्या करोगे, सारे सेमेस्टर को जोड़ लो, 8 सेमेस्टर हो गए। अब 8 सेमेस्टर में किसी में 600 होगा, किसी में 700 के मार्क्स होंगे, सो ओवरऑल टोटल कर लो। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4800। अब 4800 में से मुझे कितने मिले, तो मैं वो यहाँ एंटर कर दूंगा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, अगर ये स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने यहाँ फार्मेसी सेलेक्ट किया है, सो हियर आई एम कलेक्टिंग यस। ओके, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स, नाउ सेव। अब फार्मेसी, इंजीनियरिंग, अगर मैं OMS कैंडिडेट हूँ तो मुझे 55% लगेंगे, राइट, सो सेव एंड नेक्स्ट। नाउ एग्जामिनेशन डिटेल्स, नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ सेलेक्ट नहीं करते हो, अगर मैं नो सेलेक्ट कर दूँ दैट मीन्स मुझे सिर्फ B.Ed CET स्पेशल एजुकेशन कॉलेज के लिए मुझे जाना है या नहीं, मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन और डू यू वांट टू कंप्लीट योर B.Ed इन इंग्लिश मीडियम, दोनों बात सेम है। इंग्लिश मीडियम कॉलेज से मुझे करना है तो मैं यहाँ यस सेलेक्ट करूँगा। यू विल हैव टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट अलॉन्ग विद B.Ed CET। अगर मैं नो करता हूँ तो ये मुझे कहेगा कि आपको सिर्फ B.Ed CET का एग्जाम देना। इफ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट एंड अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन इंग्लिश मीडियम कॉलेज। यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन फॉर मराठी और नॉन इंग्लिश मीडियम कॉलेज, या मराठी, गुजराती, हिंदी, उर्दू, उन कॉलेजेस के लिए आप जा सकते हो। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज, नो रिक्वेस्ट फॉर इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ELCT विल बी एंटरटेन। सो ELCT के लिए जा रहे हो देन गाइस सेलेक्ट यस। ओके, आप ELCT के लिए सेलेक्ट करो। मैं तो कहता हूँ सारे स्टूडेंट जो है वो ELCT को सेलेक्ट कर दो, क्योंकि जब कैप राउंड के थ्रू आपको एडमिशन मिलना होता है, अगर आप ELCT के थ्रू वापस आपको वहाँ सेलेक्ट करना है, देखो B.Ed CET तो देने ही वाले हो, उसके बाद ELCT देने वाले हो, सो आप B.Ed CET के थ्रू भी कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो और ELCT के थ्रू भी कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो। सो बेस्ट है कि आप ELCT का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लो। डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट ELCT अलॉन्ग विद B.Ed CET, वापस पूछ रहा है आपको, यस। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस, स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर होती है। ओके, कुछ स्पेशल एजुकेशंस की कॉलेजेस होती है। ओके, उसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। सो यहाँ आपको यस करना है देन आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। जैसे कि अगर मैं यस सेलेक्ट करता हूँ देन B.Ed ऑटिज्म, ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टी कैटेगरी, सो इसमें आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो और उनकी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस भी आप ढूंढ सकते हो। सो हियर आई एम सेलेक्टिंग नो। ओके, नाउ सेंटर प्रेफरेंसेस, note centers given in the option may not be available if the infrastructure is not available for conducting the computer based test. In such case the candidate will be shifted to the center of the next choice. So suppose मैंने यहाँ सेंटर चूज किया है पहले पुणे, अब पुणे में कोई एक कॉलेज है और वहाँ मुझे सेंटर बराबर नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे नेक्स्ट जो मैं यहाँ सेलेक्ट करने वाला हूँ वहाँ का अलॉट हो सकता है। ओके, तो आपको ऐसे सेंटर चूज करने हैं, देन सेव एंड प्रोसीड। नाउ uploading photograph and signature, so photo and signature should be in JPG, PNG format. okay, अब क्या इनकी साइज डायमेंशन होने चाहिए, ओके, आप देख सकते हो इन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, और मेक श्योर कि ये वाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा है। ओके, सो आई एम सेलेक्टिंग फोटोग्राफ। ओके, आप इसे क्रॉप भी कर सकते हो एंड अपलोड इट। सो फोटो अपलोड हो चुका है, नाउ सिग्नेचर एंड अपलोड इट। सो सिग्नेचर इज ऑल्सो अपलोडेड, सेव एंड प्रोसीड। सो एप्लीकेशन फॉर्म लगभग तो
पूरा हो चुका है. नाउ प्लीज़ use latest version of Google Chrome or Mozilla Firefox to upload the documents. The file type should be PDF, JPG or PNG, and file size should not be exceed 500 KB. ओके सो ये आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ सबमिट करना है. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, आपका जो रिस्पेक्टिव आईडी जो यहाँ आप अपलोड कर रहे हो ये कैरी करना है साथ में. ओके सो सबसे बेस्ट है कि आप आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर दो. ओके अपलोड. सो हियर आई एम अपलोडेड माय आधार कार्ड. सेव एंड प्रोसीड. नाउ दिस इज द प्रीव्यू एंड यू हैव टू वैलिडेट. अगर आपको लगता है कि यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है देन आप एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो. ओके गाइस सो रिस्पेक्टिव टैब पर आपको क्लिक करना है. यहाँ जैसे कैंडिडेट टाइप आपको चेंज करना है देन यहाँ क्लिक कर दो और चेंज कर दो. ठीक है, क्लिक हेयर टू एडिट. सारी डिटेल्स करेक्ट है. सेंटर्स चेंज करने हैं देन यू कैन चेंज सेंटर्स टू. ओके प्रोसीड फॉर पेमेंट. Please check the details filled in the application form carefully before making the payment. After making payment, you will not be able to make any changes in the application form details. Are you sure to proceed the payment? अगर आपको लगता है नहीं कुछ डिटेल्स रॉन्ग है then select no. Now अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ इनकरेक्ट हो सकती है तो select no और सारी इन्फॉर्मेशन एडिट कर दो. एंड इफ आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है then select over yes and make the payment. So I have to pay 800 rupees because मैं open category से belong करता हूँ. Okay now click over here, proceed to payment. आपको यहाँ क्लिक करना है. I agree terms and condition and proceed. Okay so ये payment gateway है. Do not press the back button. You can select any mode, credit card, debit card, UPI, net banking, wallet. बस आपको डिटेल्स एंटर करने हैं and you have to pay 800 rupees and that's it. अब क्या करना है, आपको एक ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म. सो जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे मुझे क्लिक करना है एंड देन वो मुझे डाउनलोड कर लेना है. आपको क्या करना है, जैसे प्रिंट ऑप्शन करोगे वहाँ PDF सेव एज ए PDF आप कर लेना तो आपके पास एक PDF सेव हो जाएगी और वही आपको अपलोड करनी रहेगी ड्यूरिंग कैप राउंड प्रोसेस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज. डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन ब्रोशर. ओके हियर इट्स सेइंग minimum 55% marks for all categories, all subjects and all faculties with respect to the outside Maharashtra state candidate. Okay, so अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है और 55% मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में है देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हो. ओके गाइस सो गो थ्रू ऑल दिस एंड कुछ भी डाउट्स है देन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन. And want a preparation? Then we have started classroom coaching at Mumbai. You can call on respective numbers and you can book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. For all exam updates and notifications, you can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. Guys, don't forget the crash course program. You can call on this particular number, okay, and get a free counseling session from our experts. So that's all. All the best for your career. See you in the next video.